Welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, we were doing this chapter that is files and folder. We have started doing this chapter and up to now we have learned so many things in this chapter, है ना? I have shown you practically by illustrating the things that are given in your book, and that's why I am taking this class from laptop so that I can show you what exactly I am doing. So in the last class, the last topic that we have discussed is selecting one file and selecting multiple files. This we have done. So we have learned that to select one file, what we have to do? To select one file, open the folder containing file. So what we have to do? We have to open the folder that containing file. Click on the file you want to select. Then what we have to do? We have to click on the file that we have to select. Next is the file is highlighted. जिस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे what will happen? That file will get highlighted, है ना? वो फाइल क्या हो जाएगी भाई? वो फाइल तो highlighted हो जाएगी. Now, information about the file appears. Information about the files appear in the area including the file type, size, data type of the file when it was last changed. ठीक है? चलो ये सारी चीजें तो हमने देख ली. Next is selecting multiple files and folder. Next topic is selecting multiple files. Means अगर हमें एक फाइल नहीं select करनी, if we have to select the multiple file, what we have to do? If we have to select the multiple file, now question arises why we have to select the multiple file. ऐसा क्यों होगा कि हमें multiple file select करने की जरूरत पड़ जाएगी? ऐसा क्यों हो सकता है कि भाई हमें multiple file select करनी पड़े? देखो ये ऐसा हो सकता है, सपोज आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दोज फाइल्स टू सम इन माई पेन ड्राइव. अगर मुझे वो फाइल्स अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे वन बाय वन का सेलेक्ट करने से अच्छा है कि मैं मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करूं, है ना? मैं उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूं, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करूं और उन्हें एक साथ मूव करूं. चलो एक बार करके देखते हैं again how we can select the multiple files. So according to your book, what we can do? Open the folder containing files. First step is we have to open the folder that contains the file. Click the file you want to select. Press and hold down the control key as you click each file you want to select. जो भी फाइल आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, just click on that. Okay, so let us see, can we do this? तो हम यहाँ पे गए स्टार्ट पे, देन फाइल एक्सप्लोरर इंस्टेड ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर because this is Windows 10, file explorer option is not there. Now I have opened a file, say pictures. मैंने एक फोल्डर पिक्चर की ओपन की, पिक्चर्स में से मैंने स्क्रीनशॉट्स ओपन किए. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस स्क्रीनशॉट. अब लाइक देखो, अब मैंने ये फाइल सेलेक्ट की. अब इस फाइल को सेलेक्ट करने से क्या हुआ, ये फाइल क्या हो गई है, ये फाइल हो गई है हाईलाइटेड. ये फाइल हो गई है बेटा हाईलाइटेड, है ना? नाउ अब ये फाइल तो हाईलाइटेड हो गई है, बट अब मुझे तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगल फाइल सेलेक्ट हुई. यहाँ पे ये सिंगल फाइल सेलेक्ट हुई और सिंगल फाइल सेलेक्ट करने के साथ देखो वी आर हैविंग सो मच ऑफ ऑप्शन. We are having properties, we can rename, we can delete, we can create shortcuts, copy, cut, send to, give access to, है ना? Lots of things are here. Now I want to select the multiple file. अब मुझे क्या करना है, I have to select the multiple file. To select the multiple file, what I can do? Multiple file select करने के लिए what I can do? मुझे क्या करना होगा? First of all I have to click on the कंट्रोल की. अब मैंने एक फाइल सेलेक्ट की,
देन दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की। ये मैंने कैसे किया? बाय क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल बटन, CTRL बटन पे, CTRL बटन को प्रेस करके रखा मैंने, तो क्या हुआ, हम क्या कर सके, हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सके। ओके, चलो एक बार फिर से मैम आपको शो करें। देखो इधर हमने क्या किया, हमने एक सिंगल फाइल सेलेक्ट की, यहाँ पे तो हमने एक सिंगल फाइल सेलेक्ट की। नाउ जब हमने कंट्रोल की प्रेस किया और फिर हम जब सेलेक्ट करना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6, तो सी हियर वी कैन सेलेक्ट द मल्टीपल फाइल। और वो जरूरी नहीं कि हम एक ऑर्डर में सेलेक्ट करें, आई कैन सेलेक्ट फाइल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी मैं कोई भी फाइल ऐसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके fine. Now let us move toward our chapter. So we have seen how to select the, we have learned how to select the multiple files. Multiple file को एक साथ कैसे हम select करें। Okay. Now what is the next topic that we have to read? Next topic is selecting a group of files. So we have just done it now. Okay. So we can do it. Achha, there is other method also to select the group of files. Suppose some files are here one after other and we have to select that. अब हमें उन फाइल्स को सेलेक्ट करना है जो कि वन आफ्टर अदर दिए हुए थे। हाउ वी कैन डू दैट, हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड। इधर दैट वी आर गोइंग टू रीड हाउ वी कैन सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फाइल। ठीक है, so what we have to do, open the folder containing files। अब सबसे पहला तो काम यही है कि भाई उस फोल्डर को खोलो जिसमें वो फाइल है, वो फोल्डर को खोलिए जिसमें क्या है, जिसमें वो फाइल है। Then position the mouse pointer slightly above and slightly to the left and first file in the group। चलो अभी मैम आपको करके दिखाते हैं how we can do this, है ना। So next, click and drag the mouse pointer down and to right until the desired number of files is selected। Okay, so click and drag the mouse pointer down and to the right until the files are selected। जब तक फाइल सेलेक्ट ना हो जाए तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, तब तक यू कैन कीप ऑन ड्रैगिंग द फाइल। तो इसको करने के लिए वेयर वी हैव टू गो, इसको करने के लिए वी हैव टू गो टू यस विंडोज एक्सप्लोरर। Okay, let us see। So ma'am is going to demonstrating it। ठीक है, I am going to explain you this। First of all, I went to this is open, yes, yeah, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखो मैम को क्या करना है, मैम हैज टू सेलेक्ट दीज फाइव, दीज नंबर्स ऑफ फाइव। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने डबल टैप किया, फिर मैंने देखो इस तरह से हमने क्या किया, मैंने अपना मैंने अपना माउस पॉइंटर इधर प्लेस किया और फिर डबल टैप करके उसको एक साथ मैंने ड्रैग किया। माउस पॉइंटर को एक जगह प्लेस करके डबल टैप करके मैंने फाइल्स को क्या किया, ड्रैग डाउन किया, नीचे तक उन्हें ड्रैग किया। ओके, समझ में आ गई इतनी बात सारे बच्चों को। चलो एक बार फिर से मैम करके दिखाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो हाउ वी कैन डू दिस। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने ऐसे इसको ड्रैग डाउन किया। ठीक है, देखो नीचे तक की फाइल हमने क्या की, सेलेक्ट की। नाउ एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टिंग मल्टीपल सिलेक्शन एंड ग्रुप सिलेक्शन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शन, इन दोनों सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, दिस क्वेश्चन कैन बी अराइज। So what is the difference between group selection and multiple selection? See, multiple selection में what happens? In multiple selection, see, in
मल्टीपल सिलेक्शन व्हाट हैपन, मल्टीपल सिलेक्शन में क्या होता है बेटा कि इन मल्टीपल सिलेक्शन वी कैन select any number of files but they should not be in proper order. देखो मल्टीपल सिलेक्शन में I can select this file, then I can select this file, then this file, then this file, any number of file I can select. Okay, then this file, कोई भी file I can select. Now अब in group selection what happen in group selection, we select a group of files. ठीक है, see हम कैसे करेंगे, we will double tap and then we will drop it down, ड्रैग डाउन करके वी कैन सेलेक्ट, है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। ओके, ग्रुप सिलेक्शन हमने कर लिया यहाँ पे। तो आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शन, दोनों तरह के सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर। अच्छा, now one more thing is there, selecting all files. Open the folder containing the file, click on the organize and select all. ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, how we can do that? Open the folder containing file, then click on organize and then click on select all. फिर क्या करेंगे, select all पे हम क्लिक कर देंगे। ओके ओके, डीसेलेक्टिंग अ फाइल। अच्छा, ये भी अच्छा है, चलो लेट अस सी हाउ वी कैन डीसेलेक्ट अ फाइल। मतलब अब फाइल तो सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी वांट टू डीसेलेक्ट इट। अब हम उसको सेलेक्ट करना नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं कि वो डीसेलेक्ट हो जाए। हाउ वी कैन डू दैट, टू डीसेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम मल्टीपल फाइल सिलेक्शन, होल्ड डाउन कंट्रोल की। सबसे पहला काम किया कि होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड क्लिक द फाइल यू वांट टू डीसेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डीसेलेक्ट फाइल करने के लिए फिर से कंट्रोल की सेलेक्ट करेंगे और जो फाइल हमें नहीं चाहिए उसको हम क्लिक कर देंगे। टू डीसेलेक्ट ऑल फाइल क्लिक एंड एम्प्टी एरिया। अच्छा ठीक है, जैसे रुको मैम आपको शो करते हैं। सपोज अब मैम को क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा एरिया मैम को सेलेक्ट करना है। तो मैम ने क्या किया, ऐसे करके मैम ने ग्रुप सेलेक्शन किया। ठीक है, अब ये सारे फाइल सेलेक्ट हो गए। अब मैम को नहीं चाहिए, अब मैम को ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैम क्या करेंगे, स्क्रीन पे कहीं भी एम्प्टी एरिया पे आई विल क्लिक, किसी भी एम्प्टी एरिया पे व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टैप। हाँ, तो फाइल व्हाट हैपन, दे गॉट डीसेलेक्टेड, फाइल्स की जाएंगी, फाइल्स डीसेलेक्ट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज टू रिवर्स द सिलेक्शन, डीसेलेक्ट द सिलेक्टेड फाइल एंड सेलेक्ट द डीसेलेक्टेड फाइल। अच्छा, इसको फिर से करने के लिए व्हाट वी कैन डू, deselect the selected file and select the deselected file। ठीक है, press alt key on edit and then click on import selection। अच्छा, this is interesting। now this is creating a new file। how we can create a new file, नई फाइल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, okay, so let us see। so we can instantly create name and store a new file। we can instantly create name and store a new file in the location you want without starting a program। You can normally create a new file by opening the appropriate program, pulling down the file menu or subfile tab and then choosing the new command को choose करके। ठीक है, however creating a new file without starting a program allow you to focus on the organization of your file rather than the program you need to accomplish your task। so how we can, चलो अब now let us see step by step process। ओके, ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, वो फोल्डर ओपन करो जिसमें वी वांट टू क्रिएट अ फाइल। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी फोल्डर। ठीक है, चलो राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी सेक्शन ऑफ द फोल्डर, क्लिक ऑन द न्यू, क्लिक ऑन द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट। लेट अस सी
देखिए यहाँ पे होता है। तो हमने फोल्डर बनाया है कोई, या हमारे पास कोई फोल्डर पहले से बना हुआ है? लेट मी सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओके, सो लेट मी नाउ आई हैव, देखो अब ये एक फोल्डर मैंने ओपन किया। अब इस फोल्डर में व्हाट हैपन, आई हैव क्लिक हियर, मैंने कहीं भी यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करने की बात हुई थी, मैंने ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक किया। हियर सी आई एम गेटिंग द ऑप्शन न्यू। न्यू पे जाके आई एम गेटिंग कि विच टाइप ऑफ फाइल आई वांट टू ओपन, कैसी डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस चाहिए, बिटमैप इमेज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेस डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, व्हाट आई वांट। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। एंड सी यहाँ पे क्या हुआ, एक मेरा एक फोल्डर एक मेरी फाइल क्रिएट हो गई। समझ में आया सबको? तो हमने क्या किया, मैंने एक फोल्डर पे क्लिक किया। फोल्डर ओपन होने के बाद वहां पे जो भी मुझे एम्प्टी स्पेस दिखा, उस एम्प्टी स्पेस पे आई हैव व्हाट आई हैव डन, आई हैव double click there, then I went to new option, and new option में I have got several other options, ढेर सारे ऑप्शन थे, उनमें से मैंने कुछ भी प्रेस कर दिया। तो देखो सी आई हैव गॉट 2 फाइल्स हियर। समझ में आया सबको? ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर, एन आइकन फॉर द न्यू फाइल अपीयर इन द फोल्डर। हमारा भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा भी आइकन यहाँ पे बन के आ गया ना। यहाँ पे देखो ये दोनों आइकन से बन के आ गए ना। अच्छा, अब तो आप बोलोगे कि मैम दीज आर नॉट आइकन, तो हम क्या करेंगे, वी विल गो ऑन व्यू, एंड अब हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर देंगे। नाउ यू कैन सी ना, अब तो यहाँ पे सबको साफ साफ आइकन दिख रहे हैं ना। ओके, now let us read, update your knowledge. Let us update our knowledge. Let us see what this box wants to tell us. Let us update our knowledge. You can create several different file types in Windows. We can create several different file types in Windows, such as bitmap image, that means a drawing, a WordPad file, a notepad file, and compressed zip folder. You can also create any new folder. ठीक है, देखो जब हम राइट क्लिक कर रहे थे, तो वी वर गेटिंग ना ऑप्शन न्यू वगैरह का ऑप्शन हमारे पास आ रहा था ना। So they are talking about that only. Next topic is creating a folder on the desktop. अब next topic is how we can create a folder on the desktop. Desktop पे folder हम कैसे बनाए? So this one is very interesting. First let us see what is written in your book. चलो पहले book पे देख लेते हैं what it is written. You can create your personal folder by your name on the desktop so as to save your files in it. हम अपने नाम से क्या कर सकते हैं, अपना फोल्डर बना सकते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को, वी विल सेव अवर फाइल्स देयर। फर्स्ट इज राइट क्लिक द माउस on a blank area on your desktop. First step is what we can do, we can right click the mouse on a blank area on your desktop. A menu appears. Click on new, a sub menu appears. Okay, फिर क्या करेंगे, न्यू पे जाके we will click on sub menu, so we will get a न्यू पे जाने के बाद then again we will get a sub menu. Then click on folder, then click on folder. An icon for the new folder appears on the desktop. An icon for the new folder appears on the desktop. Type the name you want to keep for the folder. Press enter key on the keyboard. चलो करके देखें, इतना सारा काम करके देखें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, what we are going to do, we are going to make a new folder. We are going to make a new folder. What are the steps? First we have to go on the desktop. फिर वहां पे जाके we have to do the right click and then
Okay. So I was telling you about how to make a folder on the desktop. Let us do. Okay. तो देखो भाई डेस्कटॉप पे what I have done, lots of files are open. Now this is my desktop. अब देखो डेस्कटॉप पे मैम ने क्या किया, डेस्कटॉप पे आई विल मेक अ राइट क्लिक किया, ठीक है, फिर से करके दिखाती हूँ। डेस्कटॉप पे व्हाट आई हैव डन, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया। अब राइट क्लिक पे देखो व्हाट इज देयर, वी आर हैविंग व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश एंड ऑप्शंस लाइक दैट। देन हियर आई एम हैविंग न्यू पे जाके आई कैन क्लिक ऑन फोल्डर। अब देखो ऐसे करते ही हमारा फोल्डर बन के तैयार हो गया ना। नाउ आई कैन नेम दिस फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे बस बाय टाइपिंग I can name this folder, see, or then press enter, ठीक है। तो here I have got this is my folder, this is my folder, है ना। तो कैसे किया, we have pressed on the right click on the desktop, then we went to the new option, and then after new option I have clicked on फोल्डर पे क्लिक करने पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे एक फोल्डर बन के तैयार हो गया, और उस पे हमने क्या किया, वी हैव रीनेम दैट फोल्डर। हमने उस फोल्डर को क्या कर दिया भाई, वी हैव रीनेम दैट फोल्डर, उस फोल्डर को हमने रीनेम कर दिया। चलो लेट अस मूव अहेड। ओके, नाउ रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। चलो ये भी मैम बता दें आपको, हाउ टू रीनेम अ फाइल एंड फोल्डर। You can rename a file to describe the content of the file in a better way। अच्छा देखो, सारी फाइल्स अगर फाइल वन के नाम से सेव होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस फाइल में क्या चीज है। नाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम what we can do, we can rename our file in different name, है ना। फाइल को रीनेम कर सकते हैं अलग अलग नाम से। Okay, you can, what we can do, we can rename a file to describe the content of the file in better way। Renaming a file can help you to quickly in locating files। अब हमें कोई फाइल चाहिए तो what we can do, हम जल्दी से उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें फाइल का नेम पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी से हम लोकेट कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। पहले what we will do, we will read the steps। अच्छा उसके पहले you should only rename only those files which you have created। सी कभी कभी क्या होता है कि हम अगर स्कूल के डेस्कटॉप को यूज करें, स्कूल के डेस्कटॉप को, इफ वी आर यूजिंग स्कूल का डेस्कटॉप, देन व्हाट हैपन, स्कूल के डेस्कटॉप को करने का मतलब है भाई उस पे क्या होती है, कई तरह की फाइल्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी होती हैं, है ना। तो वहां पे हम रीनेम नहीं कर सकते, बट इफ वी आर यूजिंग अवर पर्सनल कंप्यूटर देन देयर वी कैन रीनेम अ फाइल। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम किसी फाइल को इजिली रीनेम कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमारा ही फाइल, हमारा कंप्यूटर है। नाउ ओपन द फोल्डर दैट कंटेन द फाइल यू वांट टू रीनेम। वो फोल्डर खोलिए जहां पे आप रीनेम करना चाहते हैं। Click on the file you want to rename, click on organize, click on rename। Okay, let us do, करके देखें क्या। Note you can also press F2 key from keyboard after clicking file to rename it। ये भी अच्छा है। चलो we will try this also। We can click on F2 key, ठीक है। हम क्या करेंगे, function to F2 की को हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, and then what will happen, then we can rename it। Type a new file name and then press enter। अच्छा, one more important thing, a file name cannot contain dash, this or this character, any sort of character, किसी भी तरह का character is not allowed। जैसे character साइंस इस तरह के character allowed, exclamation mark, question mark, ये सब एक फाइल का नाम नहीं हो सकता, ठीक है।
your mind while typing the new file name, you can press the escape key to return to the original file name. करके देखें, चलो करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, बिकॉज कंप्यूटर इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ठीक है, हम इस पे गए, यहाँ पे तो कितनी सारी फाइल सेलेक्ट है. अब हमने इस फाइल को सेलेक्ट किया. ठीक है, और आपके बुक में क्या था कि वी कैन डू इट बाय क्लिकिंग ऑन F2 ऑल्सो. फंक्शन 2 की को हम प्रेस करेंगे, देन ऑल्सो वी कैन डू इट, है ना. ओके, और वी कैन डू इट बाय, अगर देखो मैम ने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया. मैम ने क्या किया, इस फाइल पे मैम ने राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आए रीनेम ऑप्शन पे. हियर वी हैव रीच्ड ऑन रीनेम ऑप्शन. रीनेम ऑप्शन पे आए ना हम. अब हमने इस पे क्लिक कर दिया, रीनेम पे क्लिक कर दिया. रीनेम पे क्लिक करने के साथ क्या हुआ, देखो नाउ आई कैन रीनेम दिस. अब इस फाइल का अभी का नाम क्या है, स्क्रीनशॉट 20. अब मैम को क्या चाहिए कि इसका नाम क्या हो जाए, कुछ अच्छा सा, कुछ दूसरा सा नाम हो जाए. अच्छा देखो, आपकी बुक में दो चीज लिखी, एक तो लिखा है कि यू कैन रीनेम इट, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रीनेम इट. वन मोर थिंग इज रिटन देयर दैट इफ यू वांट टू चेंज योर माइंड, अगर हम रीनेम कर रहे हैं तभी हमारा माइंड चेंज होगा कि नहीं वी वांट, हम रीनेम नहीं करेंगे, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रेस द एस्केप की. अब देखो एस्केप की मैम ने प्रेस किया तो ये जो हाईलाइटेड था वो क्या हुआ, वापस से नॉर्मल हो गया, है ना. फाइल नेम वापस से आ गई. चलो अब फिर से अब इसको रीनेम करके देखते हैं. तो वी आर गोइंग टू रीनेम इट. तो फिर से मैम बता दें कि हम कैसे कर रहे हैं. मैम ये चीज कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कहाँ गई हूँ, हम अपनी फाइल्स पे गए. फाइल से मान लो अब मैंने स्क्रीनशॉट 23 को टच किया, इसको क्लिक करते ही ये डार्कन हो गया, मतलब ये फाइल क्या हो गई है, सेलेक्टेड हो गई. इतना हमने पढ़ा. अब फिर मैम ने क्या किया, फिर मैम ने इसको राइट क्लिक किया. देखो राइट क्लिक करने के साथ व्हाट हैपेंड, ये एक बहुत बड़ा से ऑप्शंस आ गए कि इतनी सारी चीज वी कैन डू इट. हियर आई हैव क्लिक्ड ऑन रीनेम ऑप्शन. मैंने क्या किया, रीनेम पे किया. अब रीनेम पे करने के साथ मैंने इसका नाम रखा, इस फाइल का नाम मैंने रख दिया डॉक्यूमेंट. ठीक है, आई हैव केप्ट, इसका नाम मैंने डॉक्यूमेंट रख के नाम रख दिया. और फिर मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दिया. ठीक है, सी. अब ये फाइल किस नाम से बन गई है, डॉक्यूमेंट के नाम से. ये फाइल क्या हो गई है, ये फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से बन चुकी है. अच्छा एक चीज और हमने पढ़ी थी, दैट वी कैन नॉट क्लिक, हम क्या नहीं कर सकते, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट क्लिक, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश साइंस या किसी भी तरह का कैरेक्टर हम फाइल का नाम नहीं रख सकते. करके देखते हैं कि क्या होता है अगर हम कैरेक्टर नाम रखते हैं. तो हमने इसको डिलीट किया. अब मैम इज गोइंग टू कीप दिस साइड. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. अच्छा अब इस बार सारे बच्चे पढ़ेंगे, क्या आ रहा है, अ फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर. फिर से करके देखते हैं. A file name cannot contain any of the following character. That means इन characters को we cannot include here. इन characters को हम यहाँ पे नहीं ला सकते, समझे बच्चे. ओके, अगर हम क्वेश्चन मार्क डालना चाहें तो अगेन वी कांट कीप क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर इज एक्सक्लेमेटरी साइन, अगर मैम एक्सक्लेमेटरी साइन डालें तो see again and again same thing is popping out that a file name can't contain any of the following character. कोई भी इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता. ओके, नाउ so what we have read today, we have read about how to rename a file, है ना. रीनेमिंग अ फाइल हमने पढ़ा ना, ये कोई भी भूलेगा नहीं. मैम विल आस्क यू टू डू इट इन ऑनलाइन सेशंस में. हम ये काम करके देखेंगे कि हाउ टू रीनेम अ फाइल. ओके, सो किड्स दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके.